Hello and welcome to Bookie. I am Deepak Vyas and today I am going to review a wonderful book written on time management. Writer is Brian Tracy. Eat That Frog. ये बुक हिंदी में भी अवेलेबल है. सबसे मुश्किल काम सबसे पहले. Brian Tracy has done a lot of research on time management. He had experienced it before writing the book. Your frog is योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ द डे. यहाँ फ्रॉग से मतलब है आपका दिन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, द वन यू आर मोस्ट लाइकली टू प्रोक्रेस्टिनेटिंग ऑन, एंड इट इज ऑल्सो द टास्क विच हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ एंड करियर. ईट दैट फ्रॉग एवरी मॉर्निंग बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स. राइटर यहाँ पर हमें सचेत भी करते हैं कि हम सभी में कॉमन फेनोमेना ये होता है कि इजी टास्क सबसे पहले कर लें. टेम्पटेशन होता है सरल काम को करने का. राइटर बोलते हैं कि सबसे कठिन काम को सबसे पहले करें. ईट दैट फ्रॉग. अगलीएस्ट फ्रॉग सबसे पहले, सबसे बड़ा और सबसे भद्दा फ्रॉग खाएं. मतलब कि सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले पूरा करें. Whenever you complete a task of any size or importance, you feel a surge of enthusiasm, energy, and self-esteem. You feel like a winner. And the completion of an important task certainly will release the endorphins in your mind that will make you feel happy. He talks about 3 Ds: decision, discipline, and determination. This book has 21 chapters. Actually, these 21 chapters are 21 methods. तो जितना तेजी से आप इन मेथड्स को अपनाएंगे, सीखेंगे, उतना ही तेजी से आप सक्सेस की तरफ अग्रसर होंगे. तो सबसे पहली मेथड जिसकी बात ब्रायन ट्रेसी करते हैं वो है सेट द टेबल. इफ यू फेल टू प्लान, एक्चुअली यू आर प्लानिंग टू फेल. डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट. आपको डिसाइड करना है एग्जैक्टली आप चाहते क्या है. One of the very worst use of time is to do something very well which need not to be done. Step 2 में वो बताते हैं कि write it down. So decide what you want and then write it down. So a goal which is not written is merely a wish or fantasy. It has no energy behind it. Step 3, set a deadline. एक डेडलाइन वहां पे बनाएं जिससे आपको प्रेशर हो, उस काम को पूरा कब तक आप करेंगे उसकी डेडलाइन होती है. स्टेप 4, मेक अ लिस्ट एंड कीप डूइंग इट. स्टेप 5, ऑर्गेनाइज योर लिस्ट इन अ प्लान एंड प्रायोरिटाइज इट. स्टेप 6, टेक एक्शन ऑन योर प्लान. विदाउट एक्शन नथिंग कैन बी डन. स्टेप 7, रिजॉल्व टू डू समथिंग टुवर्ड्स योर मेजर गोल. So every single day you have to do something towards your major goal. So this is how Brian Tracy explains everything. Set the table. It's the first method. It's the first chapter of the book. दूसरे चैप्टर में ब्रायन ट्रेसी बात करते हैं plan every day in advance. The better plan you have, the easier it is to overcome the procrastination and get started and keep going to eat that frog. The good news is every minute you spend in planning will save you 10 to 15 minutes in execution. आगे वो बताते हैं it only take 10 to 15 minutes in planning and this small investment of time will save you 2 to 3 hours in a day. इसी चैप्टर नंबर 2 में ब्रायन ट्रेसी 6P फार्मूला बताते हैं. What is this 6P फार्मूला? Proper prior planning prevents poor performance, and you only need a piece of paper and a pen to plan your day. It's very easy, simple. 80-20 फार्मूला की बात करते हैं तीसरे चैप्टर में. What is this 80-20 फार्मूला? It says that 20% of your activity will account for 80% of your results. 20% of your customers account for 80% of your sales. 20% of your products and services account for 80% of your profit. इसका मतलब ये हुआ कि 10 काम जो आपकी लिस्ट में हैं उनमें से 2 काम इतने इंपॉर्टेंट हैं कि बाकी के 8 काम मिलाकर भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते. तो वो 2 काम क्या है? वही आपके फ्रॉग हैं, बड़े फ्रॉग हैं. Most of the people
they focus on those 80% low value tasks all the day and they are busy doing that they procrastinate the 20% most important task. In the 4th chapter he talks about consider the consequences. किसी भी काम को, किसी भी गोल, किसी भी एक्टिविटी को डिसाइड करने के पहले आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस पहले सोच लें कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और उसके आधार पर जब आप डिसाइड करेंगे तो आपकी लिस्ट बेटर होगी, इफेक्टिव होगी. अनसक्सेसफुल पीपल often think about short-term pleasure. He also talks about ABCDE method. A means आप जो भी लिस्ट बनाएं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टास्क के आगे A लिख दें. इसका मतलब है कि ये टास्क सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आपको सबसे पहले करना चाहिए. कुछ टास्क जो B में हैं वो थोड़े लेस इंपॉर्टेंट हैं. C, D और E, इस तरह से E टास्क ऐसे टास्क होंगे कि जो आपका टाइम को किल करेंगे या उनकी करने की जरूरत ही नहीं है. सी डी टास्क कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसके लिए कि आप किसी और को डिप्लॉय कर सकते हैं. और आगे ब्रायन ट्रेसी बताते हैं फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज. की रिजल्ट एरियाज जहां से आपका रिजल्ट निकलता है, आपकी जिसमें मास्टरी है, आप अगर उन्हीं काम पर फोकस करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप प्रोडक्टिव साबित हो सकते हैं अपनी संस्था के लिए या अपने खुद के बिजनेस के लिए. So the key result area is the task. If you don't do it, it doesn't get done. इसके साथ ही ब्रायन ट्रेसी बताते हैं apply the law of 3. इसका मतलब है कि 3 इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं. 3 आपके पूरे दिन में अगर आप गौर से देखें तो 3 मेजर काम होते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. He says 3 core tasks you perform contain most of the value that you contribute to your business or organization. So this is the greatest strategy to overcome procrastination and get more things done. If you find out only 3 tasks I have to perform throughout the day, you can save time for your family, for your friends. You can enjoy your life. He also talks about prepare thoroughly before begin. तो आपकी टेबल पर वो तमाम चीजें हों जिनकी आपको उस काम को करने में जरूरत है. तो अगर आप उनको साथ में लेकर काम को शुरू करेंगे तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीके से आप काम को और जल्दी फिनिश कर सकते हैं. हमारे पास अगर टेबल पर चीजें ही नहीं है तो हम इधर उधर घूमेंगे, उन चीजों को खोजने में अपना समय जाया करेंगे. इससे पहले कि आप अपनी टेबल पर वो तमाम चीजें जो आपको टास्क कंप्लीट करने के लिए जरूरी है उसको आप लेकर बैठें. So prepare thoroughly before you begin. He also talks about upgrade the key skills. आपके एरिया में आपको कौन से स्किल्स की जरूरत है, learn those skills, upgrade yourself, and that is the endless journey of life. There is no limit of learning, so you have to upgrade your key skills. He says upgrading your skill is one of the most important personal productivity principle. So learn what you need to learn so that you can do your work in excellent fashion. So आगे वो बताते हैं continue learning is the minimum requirement to succeed in your field. And he also says that everything is learnable. If others can learn, you can also learn. एक और मेथड है put the pressure on yourself. कई लोग आप देखते हैं they work when the boss is around. So only few leaders are there. जिन पे कोई प्रेशर नहीं होता फिर भी वो काम करते हैं. ऐसे लोगों को हम लीडर्स के रूप में जानते हैं. तो आप भी अपने ऊपर प्रेशर रखें कि अगर कोई भी नहीं वॉच कर रहा हो तो भी आपको जो काम करना है यू शुड कंप्लीट द टास्क. मेक गेम ऑफ स्टार्टिंग अ लिटिल अर्लियर, वर्क अ लिटिल हार्डर एंड स्टे अ लिटिल लॉन्गर. That will help you a lot. He also says that always strive to go to that extra mile. Always do more than you get paid. In one of method he says that motivate yourself. Don't depend on anyone that they will come and motivate you. You should become your own cheerleader. You motivate yourself to get things done. आगे इसी बुक में ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि टेक्नोलॉजी एक अच्छी सर्वेंट हो सकती है, उसको मास्टर नहीं बनने दें. हम बहुत ज़्यादा हमारा ध्यान
टेक्नोलॉजी खींचती है और इसीलिए बहुत ज़्यादा समय हमारा बर्बाद हो जाता है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, सपोज फोकस ऑन दैट टास्क, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड स्टार्ट ऑन टास्क एंड कंप्लीट इट। आप तैयारी से बैठे और उस काम को कंप्लीट करें। अगर आप बीच में ब्रेक लेते हैं तो वो जो ब्रेक आप ले रहे हैं वो उस टास्क के समय को 500% तक बढ़ा देगा। अगर आप एक बार में ही उस काम को कंप्लीट करते हैं तो आप उसमें लगने वाले समय से आधे समय में उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि अगर आप सपोज आपके मोबाइल फोन आपके पास रखा है, आप कोई काम कर रहे हैं और मोबाइल फोन की तरफ आपका ध्यान गया, आप उसमें लग गए, तो वापस आपको अपना अटेंशन डाइवर्ट करने में कम से कम 17 मिनट लगते हैं। And he also says that multitasking cannot be done. You have to focus on any one particular task. Multitasking is shifting your attention back and forth. You cannot be creative. He also creates long chunks of time. Like एक बार की सिटिंग में आपको कम से कम 30 मिनट, 60 मिनट और 90 मिनट आपको वर्क पे फोकस करना चाहिए। उसके बाद ही आप उसको ब्रेक लें। मतलब अगर आप थोड़ा सा काम किया, थोड़ा इधर उधर डाइवर्ट हो गए तो आप इफेक्टिव नहीं हो पाएंगे और वर्क भी आप परफेक्शन के साथ कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो एक लंबे काम, या ब्रायन ट्रेसी ये भी बताते हैं कि गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड फॉर फर्स्ट 3 hours work at least 1.5 hours. He talks about work from home. And he also talks that work from home for 1 or 2 hours non-stop. That will help a lot. Develop a sense of urgency. He says that highly productive people think, plan, and set priorities. Highly productive people, they always focus on high value tasks. And the average people, they always focus on low value tasks. So they keep busy themselves in low value tasks which has no impact or very less impact in their life and career. Do the worst first. सबसे कठिन काम सबसे पहले। तो अगर आपने ये रूटीन बना लिया और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को सबसे जल्दी निपटाने की अपनी प्रैक्टिस आगे करते रहे तो कुछ ही महीनों में आपको इसके रिजल्ट्स दिखने लगे। Your ability to select the most important task and continue doing it single-mindedly until it gets done is the key to achieve high level of performance and productivity in your life. Eat That Frog is a wonderful book on time management. It's not only the time management, it's life management. You see, time ही life है। If you waste 1 hour, तो आप ही सोचिए कि ये जो घंटे हैं 24 घंटे मिलके एक दिन बनाते हैं, 7 दिन मिलके एक सप्ताह बनाते हैं, 4 या 5 वीक बनके एक मंथ बनाते हैं, कुछ मंथ मिलकर एक ईयर बनाते हैं और आपकी लाइफ कलेक्शन ऑफ ईयर्स है। सो इफ यू वेस्ट योर टाइम राइट नाउ, यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। सो माय डियर फ्रेंड, go for this book, one of the best books written on time management. You will certainly enjoy it, and not only enjoy it, you can change your life yourself if you follow the methods mentioned by Brian Tracy. अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ईट दैट फ्रॉग और सबसे मुश्किल काम सबसे पहले, उसका हिंदी वर्जन, दोनों की लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आप इन बुक्स को खरीदना चाहते हैं तो आप लिंक पर जाएं, अमेज़न से ये किताबें आपको घर पर उपलब्ध हो जाएंगी। आपकी लाइब्रेरी में ये बुक होना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।